Welcome to DSEJ Home Classes. This e-learning content is developed for DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Dear students, we are doing the chapter rational numbers. स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स, रोल ऑफ 0 and 1, नेगेटिव ऑफ ए नंबर and multiplicative inverse of a number. I hope after watching today's video session, the learners shall be able to know under what mathematical operations rational numbers are associative, know under what mathematical operations natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers are distributive, know the importance of 0 and 1, find the negative of a number and find multiplicative inverse, which is also known as reciprocal of a number. Now let me understand the property of associativity for rational numbers. Let a equals to 3 by 4, b equals to minus 1 by 2 and c equals to 2 by 3. तो बच्चों पहले हम ऑपरेशन एडिशन लेते हैं. a प्लस b प्लस c equals to, what is a? a is 3 by 4 plus what is b? What is b? Minus 1 by 2 minus 1 by 2 plus what is c? c is 2 by 3 which equals to, पहले हम a प्लस b जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे. 3 by 4 प्लस इंटू माइनस 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 1 by 2 प्लस 2 by 3 विच इक्वल्स टू, ये हो जाएगा. तो हम इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 6 minus 4 1 4 by 4 2 8, 4 2 8 plus 2 by 3 plus 2 by 3 which equals to, ये हो जाएगा आपका 6 minus 4 upon 8 plus 2 by 3, right, which equals to 6 minus 4 equals to 2 by 8 plus 2 by 3 which equals to 2 3s are 6 which equals to 2 3s are 6 6 plus 8 2s are 16 by 8 3s are 24, 8 3s are 24 which equals to 16 plus 6 22 upon 24. तो बच्चों हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है दैट इक्वल्स टू 22 upon 24 which can be written as 11 2s are 22, sorry 11 2s are 22, yes, and 12 2s are 24. 11 2s are 22 and 12 2s are 24, 11 by 12. It means our left hand side is 11 by 12. Left hand side is 11 by 12. 11 by 12. Now let's take the right hand side. A plus
B plus C equals to what is A? A is 3 by 4 plus what is B? B is minus 1 by 2 plus what is C? C is 2 by 3. तो पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, विच इक्वल्स टू 3 by 4 प्लस ब्रैकेट पार्ट में -1 into 3 विच इक्वल्स टू -3 प्लस 2 to the 4 upon 2 3 are 6 विच इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 3 by 4 प्लस और जो -3 + 4 कितना होता है, दैट इक्वल्स टू 1 by 6 एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू ये हमारा हो जाएगा इस इक्वल्स टू 6 3 are 18 plus 4 1 are 4 upon 4 6 are 24 which equals to 18 plus 4 that is 22 upon 24 that becomes equals to 11 by 12. इट मीन्स हमारी जो राइट हैंड साइड आ रही है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है 11 by 12. Therefore addition is A plus B plus C equals to A plus B plus C A plus B plus C. Therefore addition is associative for whole numbers. Now let me take another operation, that is subtraction. A minus B minus C equals to what is A? A is 3 by 4 minus what is B? B is minus 1 by 2 बच्चों इसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, माइनस C is 2 by 3 विच इक्वल्स टू, तो पहले जो अंदर वाली ब्रैकेट है हम इसको सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा आपका 3 by 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 by 2 माइनस 2 by 3. नाउ अंदर वाली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 are 6 प्लस 4 1 are 4 upon 4 2 are 8 minus 2 by 3 which equals to 6 plus 4 that equals to 10 by 8 minus 2 by 3 and this becomes equals to 10 3s are 30 minus 8 2s are 16 by 8 3s are 24 which equals to 30 minus 16 which equals to 14 by 24. ठीक है बच्चों, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है वो आ रही है 7 2s are 14 and 12 2s are 24, 7 by 12. Left hand side is 7 by 12. Now let's take right hand side. Again we are taking A, B and C. A minus B minus C. अब हम B minus C को पहले करेंगे. A minus what is A
what is A is 3 by 4, 3 by 4 minus what is B is minus 1 by 2, minus 1 by 2 minus what is C, 2 by 3, which equals to 3 by 4 minus, now जो ब्रैकेट का पार्ट है हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, दैट इज B माइनस C, माइनस 1 इंटू 3 कितना होता है, माइनस 3 माइनस 2 टू ज़ा 4 अपॉन 2 3 ज़ा 6, विच इक्वल्स टू, जो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 बाई 4 माइनस, बच्चों माइनस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 7 बाई 6, राइट। तो अभी तक हमारा जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज थ्री बाई 4 माइनस इंटू माइनस 7 बाई 6, विच इक्वल्स टू 3 बाई 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 बाई 6, विच इक्वल्स टू, जो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 6 3s are 18 plus 7 4s are 28 upon 6 4s are 24, and which equals to 8 plus 8 16, 2 plus 1 3 plus 1 4, 46 by 24, 46 and 24 both have 2 as common factor, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, 2 to the 4, 2 3 the 6 and 2 12 the 24, तो हमारा आंसर आ रहा है 23 by 12। बच्चों our left hand side is 7 by 12 while right hand side is 23 by 12. It means subtraction is not associative for rational numbers, that is a minus b, that is a minus b minus c is not equals to a minus b minus c, that is subtraction is non-associative, right? Now let us take another operation, that is multiplication। बच्चों जो multiplication है that must also be associative like integers and whole numbers। तो let me check, हम इसको चेक करके देखते हैं, a इंटू बी इंटू सी, देखते हैं कितना आता है, what is a is 3 by 4 into what is b is minus 1 by 2, b is minus 1 by 2, ठीक है बच्चों, इंटू सी 2 by 3 विच इक्वल्स टू, तो पहले जो ब्रैकेट का पार्ट है हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 3 by 4 2s are 8 into 2 by 3, 2 1s are 2, 2 4s are 8, which equals to minus 3 upon 4 3s are 12, 4 से 12, और यहाँ पे हम 3 3 भी कर सकते हैं, 3 1s are 3, 3 1s are 3, then you will get minus 1 by 4, तो बच्चों हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है दैट इज माइनस 1 by 4, माइनस 1 by 4। अभी हम चेक करेंगे क्या हमारी राइट हैंड साइड भी 1 by 4 के इक्वल आती है, माइनस 1 by 4 के इक्वल आती है। अगर ऐसा होता है देन मल्टीप्लिकेशन विल बी एसोसिएटिव, a इंटू बी इंटू सी, what is a is 3 by 4 into what is b is minus 1 by 2 into what is c is 2 by 3। तो यहाँ भी हम ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, 2 1 2, 2 1 2,
this equals to 3 by 4 into minus 1 into 1 minus 1 by 3. 3 ones are 3, 3 ones are 3, which equals to minus 1 upon 4 ones are 4 minus 1 by 4. Right, students? It means left hand side equals to right hand side. Therefore, multiplication is associative in case of rational numbers. That is, a into b into c equals to a into b into c. That is, multiplication is associative for rational numbers. Now let's check the last operation, that is division. तो what do you think, जो डिवीजन ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होना चाहिए या नॉन एसोसिएटिव होना चाहिए? आपने होल नंबर्स का किया, इंटीजर्स का किया, तो वहाँ पे आपको दैट वाज नॉन एसोसिएटिव, तो यहाँ भी आई थिंक ये नॉन एसोसिएटिव आना चाहिए. लेट वी चेक. ए divided by b divided by c, which equals to, what is a is 3 by 4 divided by, what is b is minus 1 by 2, b is minus 1 by 2 divided by c is 2 by 3. तो बच्चों पहले हम जो ये वाला पार्ट है ब्रैकेट वाला, इसको सॉल्व करेंगे. 3 by 4 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो माइनस 1 by 2 का हो जाएगा माइनस 2 by 1 डिवाइडेड बाय 2 by 3, विच इक्वल्स टू 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 into minus 1 minus 3 by 2 minus 3 by 2 divided by 2 by 3. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे. सॉरी ये वैसे हमने ये इसको गलत कर दिया है. ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो ये कैंसिल नहीं होंगे. मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ. ये कितना आ रहा है हमारा, माइनस 3 by 2 डिवाइडेड बाय 2 by 3. तो यहाँ पर हम जो डिवीज़न है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे. राइट, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. वी हैव माइनस 3 by 2 इंटू 2 by 3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 by 2. नाउ विच इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 अपॉन 2 2 ज़ा 4, तो माइनस 9 by 4. तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है दैट इज माइनस 9 by 4, माइनस 9 by 4. नाउ लेट वी टेक द राइट हैंड साइड. ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी. तो बच्चों अब हम b डिवाइडेड बाई सी ये वाला पार्ट पहले करेंगे. a is 3 by 4 divided by, what is b is minus 1 by 2 divided by, what is c is 2 by 3. ठीक है बच्चों, now we have to first do the part of b divided by c. Let us see, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. 3 by 4 divided by minus 1 by 2 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे. 2 by 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 by 2 विच इक्वल्स टू, जो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू
3/4 divided by -1 into 3 -3 divided by 2 to the 4 which equals to 3/4 into -4/3। बच्चों आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पे माइनस को न्यूमरेटर में शो कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे जब भी हम किसी नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल लिखते हैं तो हम माइनस को ऊपर शो कर सकते हैं, क्योंकि हमें माइनस के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम उसको कॉमन लेते हैं, तो इसलिए हमें आंसर जो है वो माइनस में ही मिलता है। तो हम इसको माइनस को न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। नो दिस बिकम्स इक्वल्स टू ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, 4 कैंसिल हो जाएंगे, वी गेट -1, राइट। तो हमारा जो राइट हैंड साइड आ रही है दैट इज -1। बच्चों क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? नो, इट मीन्स डिवीजन इज नॉन एसोसिएटिव अंडर रैशनल numbers. Division is non-associative since a divided by b divided by c is not equals to a divided by b divided by c, equal नहीं है, therefore division is non-associative for rational numbers just like जैसा आपने इंटीजर्स और होल नंबर्स के लिए किया था, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी on my WhatsApp phone number, that is my WhatsApp phone number is 9419918368. Thanks for watching. What is distributivity? इसको स्टडी करने के लिए let me take 3 rational numbers a, b and c. For any 3 rational numbers a, b and c, a into b plus c equals to a into b plus a into c, which means ab plus ac. A into b minus c equals to a into b minus a into c, which means ab minus ac. बच्चों आइए जरा हम इन दोनों इक्वेशंस को स्टडी करते हैं, देखते हैं इनका मतलब क्या होता है। We have a into b plus c. Here a is multiplying with sum of b plus c, right? It means a into b plus a into c. तो बच्चों यहाँ पे हम a के साथ b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन a के साथ c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। It means rational numbers are distributive for multiplication over addition, right? In the next equation we are multiplying a with b minus c, which means a into b minus a into c. It means a is multiplying with b minus c, which means rational numbers are distributive for multiplication over subtraction, right students? तो आइए let me study the property of distributivity with the help of an example. Now we will take one example. Let's take 3 rational numbers. Let a equals to -3/4, a equals to
minus 3 by 4, b equals to 2 by 3, and c equals to minus 5 by 6. Now you know rational numbers are distributive for multiplication over addition, जिसका मतलब होता है a इंटू b प्लस c इक्वल्स टू a b plus a into c, right? Let me take left hand side equals to a into b plus c, which equals to, what is a is minus 3 by 4 into, what is b is 2 by 3 plus, what is c is minus 5 by 6, right students? now हम पहले ये वाला पार्ट करेंगे. this equals to, we have minus 3 by 4 into 2 by 3 plus into minus 5 by 6, which equals to minus 3 by 4. तो बच्चों इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 6 12 minus 5 3s are 15 upon 6 3s are 18, which equals to minus 3 by 4. 12 minus 15 equals to minus 3 by 18. 3 1s are 3, 3 6s are 18, 3 1s are 3, 3 2s are 6, which equals to, ये हो जाएगा आपका minus 2 minus plus, we have 1 by 4 2s are 8, which means हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी आ रही है? इट इज 1 by 8, राइट? नाउ लेट्स टेक राइट हैंड साइड. right hand side is AB plus AC, which means A into B plus A into C. What is A? A is minus 3 by 4 into, what is B? B is 2 by 3. 2 by 3 plus A into C. What is A? A is minus 3 by 4 minus 3 by 4 into, what is C? C is minus 5 by 6 minus 5 by 6. बच्चों आइए इनको कर लेते हैं हम. पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे. Here 3 1s are 3, 3 1s are 3, 2 1s are 2, 2 2s are 4. We get minus 1 by 2 into, sorry, plus 3 1s are 3, 3 2s are 6, and ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा minus 2 minus plus 5 1s are 5 by 4 2s are 8. ठीक है बच्चों. नाउ इनको हम ऐड करेंगे. हो जाएगा 8 1s are 8 minus 8 plus 5 2s are 10 by 8 2s are 16, which equals to, ये हो जाएगा हमारा 2 by 16, which is 2 1s are 2, 2 8s are 16, which equals to 1 by 8. It means our left hand side is equals to right hand side. Therefore
रैशनल नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बच्चों इसी तरीके से आप यही जो प्रॉपर्टी है, यू कैन study this property with one more example, and you can study multiplication, that is distributivity of rational numbers for multiplication over subtraction, right students? Next हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ज़ीरो। तो बच्चों ज़ीरो तो आप आई थिंक फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ज़ीरो? यस, कोई आप में से मुझे बता सकता है? तो ज़ीरो के साथ हम किसी भी नंबर को जब हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई भी नंबर लेते हैं, लेट द नंबर बी 3 को जब हम ज़ीरो के साथ ऐड करते हैं 3 + 0, तो ये कितना होता है? दैट इज़ 3। और 0 + 3 दिस इज ऑल्सो 3। तो हम कोई भी इसमें, चाहे हम कोई इंटीजर लेते हैं, रैशनल नंबर लेते हैं या होल नंबर लेते हैं, तो हमें जब हम उनको ज़ीरो के साथ ऐड करते हैं, हमें उनका जो सम है वो हमें वही नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग रैशनल नंबर, लेट दैट बी -3/4। -3/4 + 0 इक्वल्स टू कितना होता है? दैट इज -3/4, राइट? और 0 + -3/4, तो बच्चों ये कितना होता है? दिस इज अगेन 0 plus into minus -3/4, which is again -3/4. तो what are you notifying? यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जिस नंबर के साथ हम ज़ीरो को ऐड कर रहे हैं, एडिशन के बाद हमें वही नंबर मिलता है, राइट? नाउ इट मीन्स, अब जरा हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। लेट वी ऐड मल्टीप्लाई सम नंबर्स विद 0। फॉर एग्जाम्पल आई एम मल्टीप्लाइंग 3 with 0। 3 into 0 कितना होता है बेटा? दिस इज 0। 100 into 0 0। 0 into 100 0। -6 into 0 0। इट मीन्स किसी भी नंबर को जब हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ज़ीरो मिलता है, बट जब हम किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, राइट स्टूडेंट्स? इट मीन्स अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, चाहे वो रैशनल नंबर है, इंटीजर है या होल नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर मान लेते हैं, वो नंबर हमारे पास a है, इट मीन्स a + 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू a, और 0 + a इक्वल्स टू a, बट a into 0 is always equals to 0, और 0 into a is always equals to 0। तो बच्चों आप क्या यहाँ पे क्या नोट कर रहे हो कि जब भी किसी नंबर को जब हम ज़ीरो के साथ ऐड करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी हमेशा वही रहती है, मतलब वो नंबर वही रहेगा। दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ द नंबर रिमेन प्रिजर्व्ड। पर जब हम इसको ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ज़ीरो बन जाता है। इट मीन्स zero is known as additive identity। 0 is known as zero is also known as additive identity for all numbers, चाहे वो नंबर रैशनल नंबर्स हों, होल नंबर्स हों या इंटीजर्स हों, राइट? नाउ लेट वी स्टडी द रोल ऑफ 1। बच्चों जैसा आपने रोल ऑफ 0 स्टडी किया, ऐसे ही हमें अभी 1 की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। जब छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, यू नो, जब भी किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास नंबर 3 है, 3 into 1 कितना होता है? दैट इक्वल्स टू 3। -3 into 1 कितना होता है? दैट इज अगेन 3। रैशनल नंबर, दीज आर इंटीजर, these are natural numbers, these are whole numbers, these are also integers। now let me take -3/4। -3/4 into 1 कितना होता है? that is again -3/4, right students? it means जब भी किसी नंबर को, चाहे वो रैशनल नंबर है, इंटीजर है या होल नंबर है, जब हम
इन नंबर्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वी अगेन गेट द सेम नंबर, हमें फिर से वही नंबर मिलता है। ठीक है बच्चों, बट अगर हम किसी नंबर को 1 के साथ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें डिफरेंट नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल 3 + 1 तो हमें 4 मिलेगा। 3 - 1 हमें 2 मिलेगा। तो बच्चों जैसे 0 के केस में आइडेंटिटी प्रिजर्व कहाँ पे हो रही थी दैट वाज इन केस ऑफ एडिशन ऑपरेशन। ऐसे ही 1 के केस में आइडेंटिटीज remain preserved in case of multiplication. Right students, it means 1 is known as multiplicative inverse, 1 is known as it means 1 is known as multiplicative identity for rational numbers, integers and whole numbers. शॉर्ट में इसका मतलब यही हुआ कि 1 के साथ हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें वही नंबर मिलता है। देयरफॉर 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप बच्चों आपको अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे नेगेटिव ऑफ ए नंबर। अब ये नेगेटिव क्या होता है बच्चों, जैसे ये हमारे पास नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। हेयर जो भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 के राइट में जितने भी नंबर्स हैं, दीज आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स, वाइल 0 के लेफ्ट में जो इंटीजर्स हैं, दीज आर नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ वी हैव 1 तो 1 के साथ किसका साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, दिस इज नोन एज पॉजिटिव नंबर। तो 1 का नेगेटिव क्या होगा, दैट विल बी -1। ऐसे ही हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर 2 है, इसका नेगेटिव क्या होगा, -2। राइट स्टूडेंट्स, बट ये जरूरी नहीं है कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इन्हीं का नेगेटिव होगा, हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनका भी नेगेटिव हो सकता है। तो लेट वी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हम कुछ यहाँ पे अभी एग्जांपल्स लेंगे, उसके साथ हम इसको स्टडी करेंगे। लेट वी टेक सम नंबर्स। मान लेते हैं वी हैव नंबर 3। नाउ 3 का नेगेटिव क्या होगा, the negative of 3 is -3, negative of 3 is -3। now बच्चों जब हम किसी नंबर को उसके नेगेटिव के साथ ऐड करते हैं, what do we will get, 3 + -3। हम 3 को उसके नेगेटिव के साथ ऐड कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, 3 + -3 विच इक्वल्स टू 0। तो हमेशा बच्चों आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी नंबर को उसके नेगेटिव के साथ ऐड करते हैं तो हमें हमेशा 0 मिलेगा। नाउ लेट वी टेक अनदर नंबर -3। तो -3 का नेगेटिव क्या होगा, द नेगेटिव ऑफ -3 इज -3, क्योंकि -3 हमारे पास नंबर है, इसके साथ हमने माइनस का साइन लगा देना है, विच इक्वल्स टू ये हो जाएगा -2 प्लस विच इक्वल्स टू +3। ठीक है बच्चों, इट मीन्स नेगेटिव ऑफ -3 इज 3। नाउ इनको हम ऐड करके देखते हैं, -3 + 3 इट इज अगेन 0। राइट, नाउ लेट वी टेक सम मोर एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 3/4 इरेशनल नंबर। इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 3/4 इज -3/4। you know addition of a number with its negative is equals to 0। तो देखते हैं क्या चीज़ 0 के इक्वल आता है, प्लस -3/4 विच इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस इंटू -3/4। तो अगेन 3/4 -3/4 इक्वल्स टू 0। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, दैट इज व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ ए नंबर। राइट, इट मीन्स नेगेटिव ऑफ ए नंबर इज आल्सो कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। नेक्स्ट वी विल टेक रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। नाउ व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। बच्चों जैसे हमारे पास कोई भी नंबर रैशनल नंबर हो जिसको हम P/Q की फॉर्म में शो करते हैं, जब हम उस रैशनल नंबर के जो
जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर उनको हम इंटरचेंज कर लें तो हमें जो न्यू नंबर मिलता है दैट इज़ नोन एज रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये जो एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं। इसमें हमारे पास जो रैशनल नंबर है दैट इज़ 3/4। इसमें हमारे पास जो न्यूमिनेटर है दैट इज़ 3, राइट, और डिनोमिनेटर हमारे पास 4 है। अब हम इसी नंबर को जो न्यूमिनेटर है उसको हम डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमिनेटर में चेंज कर देंगे, तो जो न्यू नंबर हमें मिलता है दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल, राइट। इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज इक्वल्स टू 4/3। रेसिप्रोकल इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं 3/4 इंटू 4/3। बच्चों इनको जब हम मल्टीप्लाई करें व्हाट डू वी विल गेट? 3 1 3, 3 1 3, 4 1 4, 4 1 4, we get 1/1 which equals to 1. It means any number multiplied by its reciprocal is equals to 1. That is why reciprocal is known as multiplicative inverse of that number, right? Let me take some more examples. Let's take a number -7. Now what will be the reciprocal of -7? तो बच्चों आपको पता है -7 is equals to -7/1. It means reciprocal of -7 is -7 is, तो 1 को हम न्यूमिनेटर बना देंगे जबकि -7 को हम डिनोमिनेटर बना देंगे, तो इट इज़ 1/-7, राइट स्टूडेंट। मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, -7 इसका जो रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू -1/-7। बच्चों 1/-7 कैन आल्सो बी रिटन एज -1/7। यहाँ पे जो माइनस है इट इज़ शोन इन द न्यूमिनेटर। तो बच्चों ऐसा क्यों है? 1/-7 को हम -1/7 क्यों लिखते हैं? तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। वी आर टेकिंग 1/-7। अगर हम यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो वी विल गेट -1 अपॉन माइनस इंटू -7 विच इक्वल्स टू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा -1/7 विच इज रिटन एज -1/7। ठीक है बच्चों, इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ -7 इज 1/-7 or which can also be written as -1/7, right, -1/7. Let me take some more examples. Now let we take another rational number -3/4. इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इस रेसिप्रोकल विल बी -4/3। आइए अब हम एक मिक्स प्रॉब्लम लेते हैं। लेट द प्रॉब्लम इज 1/1/4। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/1 इंटू 1/4? ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होता है? इट इज़ 4 × 4 + 1 5, ये हो गया हमारे पास 5/6। तो बच्चों आपको यहाँ पे 5/6 का रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 इज 6/5, राइट। इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ 1/1 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 6 सॉरी यहाँ से मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। आई एम वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पे आएगा 4 1 4 + 1 5/4 आना था यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हम इसको करेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे 5/4। तो इसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो आएगा, रेसिप्रोकल हमारे पास जो आएगा वो आएगा 4/4
5. Right, students? It means reciprocal of 1 into 1 by 4 is 4 by 5. Now let's take one more important question. What should be the reciprocal of 1? जो हमारे पास 1 एक नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? यू नो 1 इज रिटन एज 1 by 1, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा विल अगेन बी 1 by 1 विच इज इक्वल टू 1. Therefore reciprocal of 1 is 1. Right? Now what should be the reciprocal of 0? 0 का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? Yes students, what should be the reciprocal of 0? You know 0 is again a rational number. 0 can be written as 0 by 1. Now इसका जो रेसिप्रोकल होगा that should be 1 by 0, but 1 by 0 is not a number, it is an undefined number, right? तो this is not a rational number, तो ये undefined है, इसलिए there is no reciprocal for 0. No reciprocal for 0. 0 has no reciprocal. Right, students? Yes, it means you have to remember that a reciprocal of a rational number is a rational number which is obtained by interchanging the positions of its numerator and denominator. A reciprocal of a rational number is also called multiplicative inverse of that number. Thanks for watching. For any query, please contact my mobile number 9419918368.